In morphology of flowering plant, the next topic is stem. In the last topic, we discuss about root, and we use the term. One term we use radicle and plumule. As we all are knowing that root develop from a radicle and shoot develop from the prolongations of plumule of embryo. How it's developed is developed due to the prolongation of the plumule of the embryo. So we are just going to talk about stem. Okay, stem की अगर हम बात कर लें तो इनकी stem some characters are there. In stem कुछ तो characters होंगे. How you can use the term this is stem and this is root. In stem some characters should be there. तो stem का तो most important characters क्या होता है कि stem should bear nodes, internodes. This is the most important character. If stem is there, then nodes and internodes should be there. So nodes, internodes, but stem can bear buds. They can bear leaves, fruits, flower. That all things can be there. Is it or not? Stem, of course, it is responsible for conduction. Whatever the minerals and water coming through the root, they are helping in the conduction and reaching all these things to different part of the plant. इसका मेन वर्क है. As we use the term stem bearing bud, अगर मैं bud की बात करूँ तो देखो जो bud है, bud is condensed है. bud, अगर मैं यहाँ पर जो stem की डायग्राम आप देखें यहाँ पर, तो आप देखो उसमें मैंने आपको नोड्स, इंटरनोड्स लगा कर रखी हैं. ठीक है, देखिए नोड्स इज देयर, इंटरनोड इज देयर, और ऑन दैट ऑफ कोर्स बड इज देयर. तो अगर मैं बड की बात करूँ तो बड इज कंडेंस्ड, इमेच्योर और एम्ब्रियोनिक शूट. क्या है अपना बड? तो मैं अगर बड की बात करूं तो बड क्या है आपका कि बड जो है, बड इज कंडेंस्ड, इमेच्योर, embryonic shoot having a growing point surrounded by immature leaves. What the term I use? कि what is the bud? The bud is condensed, immature or embryonic shoot having a growing point surrounded by leaves. Having a growing point surrounded by immature leaves. This is bud. Is it? We are knowing the largest bud of cabbage. कैबेज एक बर्ड है, दे सकते हो किसी को कली. बात क्लियर? ये कभी ना खिली. तो ये जो बर्ड है आपकी लार्जेस्ट बर्ड ऑफ कैबेज, हम उनकी बात कर रहे हैं. क्लियर है कि नहीं? चलिए ये वाले डायग्राम क्लियर हुआ. इस डायग्राम को निकाला जाए और एक नेक्स्ट डायग्राम इसमें लगाइए. तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. स्टेम में अनदर टर्म्स क्या यूज कर रहा हूं मैं? बर्ड की. टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. डायग्राम देखिए आप इसका. देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की हम बात कर ले तो बर्ड्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन? वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड एंड मिक्स्ड बर्ड. क्या मैंने टर्म यूज किया है? वेजिटेटिव बर्ड, फ्लोरल बर्ड्स एंड मिक्स्ड बर्ड. इज द नेम क्लियर? वेजिटेटिव, फ्लोरल एंड मिक्स्ड. अब डायग्राम में देखिए वहां पर आपके लीव्स वगैरह बनी हुई है, रूट, शूट, लीव्स बना हुआ है, ठीक, फ्लावर भी लगे हुए हैं. इसको समझिएगा. मैंने कहा वेजिटेटिव बर्ड. Vegetative birds means to say those birds which are responsible to give rise to vegetative part of a plant. Vegetative part, root, shoot, leaf, not flower, fruit, seeds. But clear? Those birds which are responsible to give rise a branch on which क्या हो सकते हैं? उसे leaves बन जाए, है ना? Leaves से वो twig से getting on. तो a bird which is responsible to give rise वेजिटेटिव पार्ट. सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट दे, इस पे लीव्स वगैरह लगे होंगे, कोई फ्लोरल पार्ट्स नहीं आएगा. ऑफ कोर्स दैट इज वेजिटेटिव पार्ट्स. दूसरा टर्म मैंने यूज किया है फ्लोरल बर्ड्स. अब देखिए फ्लावर, दोज बर्ड्स व्हिच ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर ओनली. अब देखिए डायरेक्ट जो पर्पल कलर के फ्लावर लगे, सीधे सीधे फ्लावर दिख रहे हैं आपको, डायरेक्ट फ्लावर, उनके साथ कोई लीव्स नहीं है. तो दोज बर्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू गिव राइज फ्लोरल बर्ड्स है, ठीक, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए, दे आर कॉल्ड आपके फ्लोरल बर्ड्स. क्लियर है कि नहीं? That or not? And next one is their vegetative bird. As the name, next one is their mixed bird. So in cases of mixed bird, तो mixed bird क्या हुई? यानी mixing. Takes those birds which bear leaves as well as flower. Leaves as well as flower. Both things are there. Those birds which having leaves as well as floral also. Floral parts भी है, so flower is also there. They are regarded as मिक्स्ड बर्ड. क्लियर है कि नहीं बात? इसको ध्यान रखेंगे. यानी बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. वेजिटेटिव बर्ड्स, दोज बर्ड्स व्हिच हैविंग लीव्स ओनली. फ्लोरल बर्ड्स, दोज बर्ड्स व्हिच हैविंग फ्लावर्स ओनली. मिक्स्ड बर्ड्स हैविंग बोथ leaves as well as
फ्लोरल पार्ट्स, उन्हें बोलेंगे हम फ्लावर बर्ड, डन मिक्स्ड बर्ड। क्लियर है कि नहीं? डन और नॉट जी? लाइक देखिए हम बर्ड्स को फिर से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ बर्ड, इसको हटा दें, ठीक, हटो भाई। नाउ टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, डायग्राम लगाइए दूसरा। टाइप्स ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस, पोजीशन के बेसिस पर, तो टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन के बेसिस पर अगर हम बात कर ले तो देखिए पोजीशन बेसिस में कैसे हो सकती हैं। डायग्राम वाइज अगर हम देखें तो बर्ड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, टर्मिनल बर्ड्स एंड लिटरल बर्ड्स। व्हाट द टर्म आई यूज? टर्मिनल बर्ड्स एंड लिटरल बर्ड्स। तो आप देखो टर्मिनल बर्ड्स डायग्राम में आप चेक करो, डायग्राम में एक टर्मिनल पोजीशन पर जो बर्ड्स लिखे बिल्कुल टॉप पर लिखा है, वहां पर जो टॉप पर टिप पर है वो टर्मिनल बर्ड्स है, और जो साइड में है ये टिप पर है टर्मिनल बर्ड्स, साइड से निकल रहा है लिटरल बर्ड्स। सो दोज बर्ड्स विच प्रेजेंट ऑन टिप टर्मिनल बर्ड्स, while those birds which present on lateral side लिटरल बर्ड्स। आपने 2 में डिवाइड कर दिया, डन और नॉट जी? अगर एक टर्मिनल बर्ड दे ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, यहां से ग्रोथ रुक जाएगी, अगर वेजिटेटिव है तो बढ़ता जाएगा, बट इफ ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जैसे हम लोग पढ़ेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, वहां पर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर हो जाएगा, तो यहां पर ग्रोथ डेफिनेट हो गई, आगे नहीं बढ़ेगा। सो टर्मिनल बर्ड्स और दोज बर्ड्स विच प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड लिटरल बर्ड्स, डन और नॉट? अब मैं अगर बात कर लूं इसी डायग्राम में तो देखो लेटरल बर्ड्स होती है, लेटरल बर्ड्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, आप डायग्राम में भी चेक कर सकती हैं क्या, दे कैन बी एक्सिलरी बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स, accessory birds and adventitious birds. What 4 terms I use? They can be auxiliary birds, extra auxiliary birds, accessory birds, adventitious birds. अब चेक करें जरा डायग्राम से। तो मैंने कहा डायग्राम में देखो जो लीव्स और मेन स्टेम, जो मेन स्टेम है, मेन स्टेम एंड लीव्स, बात है मेन स्टेम और लीव्स के जो बीच में, मेन स्टेम और लीव्स के इस वाले पोर्शन में जो लगा है दैट इज एक्सिल, क्या बोलते हैं उसे हम? एक्सिल। तो इन केसेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड आपको दिख रहा है एक्सिल है। अगर मैं इसको ऐसे भी इस डायग्राम से भी देखें, अगर मैं देखूं बेटा ए आपका मेन स्टेम है और ए इसकी लिटरल ब्रांच है, मेन स्टेम एंड लिटरल ब्रांच, इसके यहां वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एक्सिल, क्या बोलते हैं इसे हम? एक्सिल। सो दोज बर्ड्स विच आर ग्रोइंग हेयर, जो यहां कोई बर्ड अगर ग्रो होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स, क्या बोलते हैं इसे हम? एक्सिलरी। इसके यहां वहां कोई ग्रो कर जाए ऐसे, देखिए एक्सिल के बाहर, तो इसे क्या टर्म यूज करेंगे हम? एक्स्ट्रा एक्सिलरी। तो एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स, गेटिंग or not? जो ओरिजिनल रियल बर्ड्स कहलाती है एक्सिलरी बर्ड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव राइज, ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं आपके जो फ्लावर्स वगैरह है, दे अराइज फ्रॉम एक्सिल। जो न्यू ब्रांचें आती हैं स्टेम की, दे अराइज फ्रॉम एक्सिल। तो एक्सिलरी बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स, क्लियर है कि नहीं? तो एक्सिलरी और एक्स्ट्रा एक्सिलरी की बात सही में आएगी। ऐसे ही आपको एक दूसरे टर्म मैंने यूज किया है वहां पर, एसेसरी बर्ड्स एंड आपका एडवेंशियस बर्ड्स। एसेसरी बर्ड्स को समझिए, accessory birds means to say those birds, accessory means to say those birds which arise क्या other than axil, axil पर नहीं, those birds which arise other than axil, axil से थोड़े से ऊपर लग जाए, यहां पर लग जाए, और somewhere else, यहां वहां कहीं लग जाए। बात क्लियर? ठीक, those birds which arise above एक्सिल, जो एक्सिलरी पोर्शन से, एक्सिलरी बर्ड्स के एरिया से थे, इफ दे आर ग्रोइंग अबव दैट एरिया और अदर देन एक्सिल, ये है आपकी एसेसरी बर्ड्स। क्लियर है कि नहीं बात? तो हमें एसेसरी बर्ड्स को पता होना चाहिए, दैट और नॉट जी? तो एसेसरी बर्ड्स आपको वहां क्लियर दिख रही हैं? एनी डाउट्स? अब एक टर्म दिया आपने एडवेंशियस, एडवेंशियस, जैसे हमने पीछे टर्म यूज किया था एडवेंशियस रूट्स, दोज रूट्स व्हिच आर अराइजिंग अदर देन रेडिकल, एडवेंशियस रूट्स। ऐसे एडवेंशियस का टर्म यहां भी कर रहे हैं, दोज वर्ड्स व्हिच दे आर नॉट ग्रोइंग एट एक्सिल अदर देन एक्सिल, ये भी एक्सिल के अलावा ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, from any part of the plant. It's not like that कि only from stem, they can be roots, from roots they can grow at leaves, they can grow from stem also, they are adventitious birds। तो हमारी बातें यहाँ पर हुई है टर्मिनल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स।
टिप पर है टर्मिनल बर्ड्स, साइड में है लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड्स कैन बी एक्सिलरी, अगर एक्सिल में है तो एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एक्सिल के बाहर है तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी। एसेसरी एक्सिल से ऊपर है और समवेयर एल से accessory, and those words which can grow and other than axial on any part of the plant, while it's root, shoot or leaves, anywhere other than axial, they are adventitious words. क्लियर है कि नहीं बात? इतना बताओ भाई। ठीक, इस डायग्राम को निकाल दूं मैं, ये वाली बात समझ में आई? ठीक, इसको देखें, इस डायग्राम को हटाइए। चल, ये डायग्राम आपका हटा है। अब इसमें दूसरा डायग्राम लगाएंगे इसी चीज को समझने के लिए। जस्ट लुक एट ये वाला डायग्राम लगाओ। इस डायग्राम में आप देखो, एक टर्मिनल एंड पर दिख रहा है आपको, तो उस पर लिख दिया मैंने टर्मिनल बर्ड और एंड बर्ड, देख रहा है, टर्मिनल बर्ड और एंड बर्ड। और साइड में देखो एक निकल रहा है आपका लेटरल बर्ड्स जो एक्सिलरी बर्ड है। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ये टर्मिनल है, टर्मिनल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, एसेसरी एंड एडवेंटिशियस। गेटिंग और नॉट, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ठीक, तो इसको आप समझ के चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवेंटिशियस वर्ड्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवेंटिशियस वर्ड्स। ये डायग्राम निकालिए, एडवेंटिशियस वर्ड्स लगाइए। एडवेंटिशियस वर्ड, एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, एडवेंटिशियस मींस दोज वर्ड्स व्हिच आर ग्रोइंग अदर देन एक्सिल एट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट, शूट और लीव्स, कहीं पर भी ग्रो करे। डायग्राम देखो, लगाओ भाई। इस डायग्राम में यू कैन सी है, देखिए ऊपर एक लिखा हुआ कॉलाइन बर्ड्स, नीचे लिखा है फोलियर और एपिफिलस बर्ड्स, और यहाँ रेडिकल बर्ड्स। डायग्राम को चेक करें, यानी कि जो एडवेंटिशियस बर्ड्स भी आते हैं, तो एडवेंटिशियस बर्ड्स में अराइज फ्रॉम एक्स्ट्रा एक्सिलरी पोजीशन एट एनीवेयर, रूट, शूट, लीव्स कहेंगे। इफ दीज बर्ड्स ग्रोइंग ऑन लीफ, आप देखिए नीचे ब्रायोफाइलम की लीफ दिख रही है आपको। इफ दीज बर्ड्स आर ग्रोइंग ऑन लीफ, लीफ पर ग्रो कर रहे हैं बर्ड्स, जैसे लीफ के मार्जिन एंड टिप पर ग्रो होती है, इन केसेस ऑफ ब्रायोफाइलम, देन सच बर्ड्स आर कॉल्ड एपिफिलस, एपिफिलस बर्ड्स। फोलियर बर्ड्स, इन्हें क्या नाम दिया हमने? एपिफिलस बर्ड्स, फोलियर बर्ड्स और लीफ बर्ड्स। तो लीफ बर्ड्स है, एपिफिलस बर्ड्स है, फोलियर बर्ड्स है। एज इन केसेस ऑफ ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, तो ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया है, इसमें आपको देख सकते हैं। गेटिंग और नॉट, तो आपको एक ब्रायोफाइलम वाली बात हो गई। दूसरी वाली बात करें हम, ठीक, तो ये फोलियर लीव्स है। आप फोलियर लीव्स वाला हटाएंगे। दूसरी आप बात करते हैं रेडिकल बर्ड्स, नाम से बात चल रहा है रेडिकल बर्ड्स। डायग्राम देखिए, रेडिकल का डायग्राम देखिए, स्वीट पोटैटो का डायग्राम लगा है। स्वीट पोटैटो बोले तो आइपोमिया बैटेटस, तो आइपोमिया बैटेटस में अगर हम देखें, यानी स्वीट पोटैटो रूट, so those birds which growing on root, those birds which present on root, radical birds, नाम से बात चल रहा है। ठीक, so those birds which present on root, they are radical birds। डायग्राम में देखो clearly you can see stems, new branches are coming, they are radical birds। getting, हटाया इसको, तुम ये तो भाई। नेक्स्ट वर्ड कौन से हो गए आपके? कोलाइन बर्ड्स। अगर मैं कोलाइन बर्ड्स की बात करूं तो फिर से भाई, Coline birds, those birds which are growing on stem, especially as in cases of jackfruit, those birds which growing on old stem, जैकफ्रूट के केसेस में ओल्ड स्टेम पर ग्रो होती हैं। आपने ट्री देखा होगा इसका पहले ये वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये स्टेम वाले पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम से, और उस स्टेम से देखो न्यू आपके ब्रांचेस आ रही हैं। कोलाइन, दोज बर्ड्स, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड्स अराइज ऑन स्टेम, कोलाइन स्टेम है। इन केसेस ऑफ, एज आई टोल्ड, इन केसेस ऑफ आप देखें जैक फ्रूट्स में, जैक फ्रूट का डायग्राम लगाओ, देखो इन केसेस ऑफ जैक फ्रूट, कितने सारे जैक फ्रूट्स लग रहे हैं। ठीक, तो बर्ड्स अराइज ऑन ग्रोइंग ऑन ओल्ड स्टेम पर बर्ड्स ग्रो हो रही हैं, जैक फ्रूट्स। ठीक, और वो देख क्या शानदार, बहुत वेट है, अगर नॉर्मल ट्विस्ट पर लगेगी तो गिरी जाएगी ट्री। See, so they are growing on old stem, मेन ट्री ट्रंक पर लग जाती है, पूरी मेन ट्री ट्रंक पर इतने सारे आपके, यू कैन सी जैक फ्रूट, कटहल, ठीक, ये वहां लग जाएगा। गेटिंग और नॉट, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? गेटिंग ना जी? तो कोलाइन ऑन स्टेम, रेडिकल बर्ड्स ऑन रूट, फोलियर बर्ड्स ऑन लीफ। क्लियर है कि बात? बोलो, डन। आगे बढ़े, निकालते इस डायग्राम को। ठीक, यानी हम बात कर लिए जैक फ्रूट्स की, कैसे हटाओ। देखिए ये टर्म यूज करते हैं, स्टेमिक सारी टर्मोलॉजी का ही खेल है पूरी मॉर्फोलॉजी में। ये टर्म की अगर हम बात करें
ये टर्म होता है आपका क्या, उसको बोलते हैं हम लोग डाइकोटोमस ब्रांच। क्या टर्म यूज करते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच। डायग्राम देखें, इन डाइकोटोमस ब्रांच आप देखिए सुंदर सा डायग्राम देगा, पर्पल कलर फ्लावर्स। इन डाइकोटोमस ब्रांच में आप देखें व्हेन ब्रांचेस, व्हेन स्टेम डिवाइडेड इनटू टू, कहीं भी दो में डिवीजन हो, ठीक, उसे टर्म यूज किया था डाइकोटोमस। जैसे अगर मैं आपके रूट इन केसेस लीवर वर्ट, रिक्सिया मार्केंसिया डायग्राम यू हैव सीन, तो इन केसेस लीवर वर्ट दे डिवाइडेड इनटू टू, डाइकोटोमस ब्रांच। इन केसेस ऑफ आप देखो, इन केसेस ऑफ न्यूरोस्पोरा फंगस, फरकेट, डाइकोटोमस ब्रांच। इन केसेस ऑफ एडियंटम आपका टर्डोफाइट्स डिवाइडेड इनटू टू, लीव्स आप देखेंगे डिवाइडेड इनटू टू, डाइकोटोमस। तो डाइकोटोमस मींस फरकेट डिवाइडेड इनटू टू, तो डाइकोटोमस branch yani branch divided into two, just like in this diagram you can see, that is dichotomous condition. Clear or not? Done. बढ़िया, चलिए मूव करें।